want their कितने life लोग to be लंबा well. जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a long life on the earth? Okay, can you put Ephesians 6:2? Ephesians 6:2. क्या लिखा है यहाँ पे? What does it say here? Honor, that means esteem and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise. और यहाँ अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि आदर करो, उनको कीमती जानो सब बातों से बढ़ चढ़कर, और अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है तुम्हारे लिए, आगे? जिसमें वायदा है। क्या वायदा है? That all may be well with you. कि तुम्हारे साथ सब कुछ भला हो, And that you may live long on the earth. और तुम धरती पर लंबा जीवन जियो। आपके पृथ्वी में जो माता पिता हैं, उनकी आशीष में इतनी ताकत है कि आपको टाइम से पहले मरने नहीं देगी। Your parents on the earth, their blessing has such a power that it will not let you die early on your days on the earth. हमें ना समझ नहीं रहना है। मैंने आपको क्या बोला? हम ईसाई धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, और उसके राज्य के अंदर कुछ सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांत को समझने लग जाओगे तो फलने फूलने लग जाओगे, ऊपर बढ़ने लग जाओगे। We should not remain without understanding. There are some principles in His kingdom. If you learn to understand those principles and walk accordingly, you will be exalted. You will start to live an elevated life. Okay? Paul is New Testament में, Apostle Paul is saying this. Apostle Paul ये नए वाचा में, नए नियम में कह रहे हैं, जब आप, and I'm talking to those married women, honor your in-laws. मैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनसे कह रहा हूं, अपने सास ससुर का आदर करो। आपको पता नहीं है कि जब आप अधीनता में आते हो उससे, When you come under subjection through that, it blesses the heavenly Father's heart. इससे स्वर्गीय पिता का दिल आनंदित होता है। And every time और हर बार a new favor, एक नई a तरफदारी, new grace is एक released over नया your life. अनुग्रह आपकी जिंदगी पे आप देखोगे। Okay? So आपके earthly माता पिता, Your earthly parents. दूसरा Second, आपके आत्मिक अगुए. your spiritual elders, your spiritual leaders. It just breaks my heart when I go to different countries, especially Western countries, people have no honor for their pastor. मेरा दिल दुखता है, खासकर पश्चिमी देशों में जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग अपने पास्टर का कोई आदर ही Because नहीं there is करते। this flat culture. वहाँ पर ये एक फ्लैट कल्चर है, And they think, अरे ये पास्टर, ये इसका नौकरी है, ये पास्टर है, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। They think he's a pastor, that is his profession. I'm a teacher and engineer, that's my So profession. क्या होता है? Same level पे कभी भी तेल फ्लो नहीं करता। So oil never flows at the same level. इस सिद्धांत को समझो। Understand this principle. आप जानते हो, मैं इस बात को जानता हूँ आज, You know, I know this today. कि जो ब्लेसिंग मैंने अपने जीवन में देखी है, जब भी मुझे खुदा का कोई बंदा मिलता है, The blessing that I have seen on my life, whenever I meet a man of God, और मैं आत्मा में परख लेता हूं कि वो मुझसे ग्रेटर है स्पिरिचुअल रैंक में, and I discern it in the spirit that this man is greater than me in the spiritual rank. I humble myself and submit under them. मैं अपने आप को नम्र करके उनके अधीन करता हूँ, Because the oil flows from, without contradiction, the lesser is blessed by the greater. क्योंकि जो तेल है वो ऊपर से नीचे बहता है, इसमें कोई संदेह, कोई बहसबाजी नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है। Everybody is equal is an American Christianity, not from the Bible. हर कोई बराबर है, ये अमेरिका की क्रिश्चियनिटी है, बाइबल की क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीहत नहीं है। Okay? Bible tells us submit to those who rule over you in Hebrews 13. इब्रानी 13 में वचन कहता है, जो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करते हैं उनके अधीन हो जाओ। What will happen? Do you know what? Think about this. And when I see this passage, when I go to meet my spiritual father, जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिलने जाता हूँ, I know there are many people who say many things. मैं जानता हूँ बहुत I से have लोग बहुत seen बातें the करते हैं। elevation in my life. मैंने अपनी जिंदगी में ऊंचा उठते हुए देखा अपने आप को। When I go to meet him,
जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ I submit myself. मैं अपने आप को I अधीन come करता under हूँ. him. I learn from him. Every time I meet him, I know I am coming back with an elevation. I know I'm coming back with a greater blessing. I know I'm coming back with an upgrade. मैं उनके अधीन अपने आप को समर्पित करता हूँ, नम्र करता हूँ, सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ मुझे पता है मैं उन्नति के साथ, मैं तरक्की के साथ, मैं बढ़ोतरी के साथ वापस आ रहा हूँ. आप जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि इतनी बुद्धि मेरे अंदर है I have this कि much sense खुदावन ने इस व्यक्ति के हाथों को रखा है मुझे ब्लेस करने के लिए. that God has kept this man's hands to bless me. आज मसीहों के अंदर वो समझ नहीं है. Today believers don't have that understanding. Many Christians are fighting the hands that God has ordained to bless them. बहुत से मसीह लोग उसी हाथ से पंजा लड़ा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने रखा है उनको ब्लेस करने के लिए. मेरी पूरी लीडरशिप यहाँ पे जानती है इस बात को. My entire leadership here knows this. मुझे ड्रीम में मेरे स्पिरिचुअल फादर आए और उन्होंने बोला इट्स टाइम फॉर अपग्रेड. My spiritual father came in my dream and said समय है ऊंचा उठाए जाने का और upgrade जब का. मैंने सबमिट किया अपने आप को उनके अंडर, जो मैंने 10 साल में नहीं देखा वो मैंने 1 साल में देखा होते हुए. When I submitted myself to him, what I did not see happen in 10 years, I saw it happen within 1 year. आज कितने लोग हैं जो कलीसिया में बैठेंगे उसी पास्टर की बुराई करेंगे. मैं कहता हूं भाई क्यों यहाँ पे बैठे? वो तेल, कितना भी तेल परमेश्वर इस कलीसिया में उड़ेले तुम्हारे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी. Today so many people, they come and sit in a church and then they backbite, they speak evil about the pastor of the church. I tell them, why do you go to that church? No matter how much oil God will pour on that church, not even a drop will come to you. And I'm not saying this because I'm pastoring this church. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस कलीसिया का पास्टर. I'm saying this from the beginning because I have been a student of the word of God. मैं शुरुआत से इस बात को बता रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन का शिष्य रहा हूं. अपने माता पिता का आदर आप करोगे. एक ऐसा अगर आपने नहीं किया आज तक, करके देखो अपने लाइफ में एक ऐसा एवेन्यू खुलेगा जो आज तक नहीं खुला था. If you honor your mother and father, if you've not done it, do it now, and you will see such an avenue open in your life which had never opened before. Amen. अब बाइबल देखिए क्या कहती है. See what the Bible says. 1 Timothy 5:17. पहला तीमुथियुस 5:17. अब देखो यहाँ बाइबल क्या कह रही है कि आत्मिक अगुओं के लिए बाइबल क्या कह रही है. What does it say for your spiritual elders? Let the elders who take the lead among the saints well be established worthy of double honor, especially those laboring in word and teaching. जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं. Amen. There is a certain avenue of blessing that is unlocked in your life when you honor your spiritual leaders. एक ऐसा पहलू है आपकी जिंदगी में आशीषों का जो आपके जीवन में तब खुल जाएगा जब आप अपने आत्मिक अगुओं का आदर करोगे. Honor ना alien हो चुका है आजकल चर्चेस से. Honor has become an alien concept to churches today. शैतान डिसऑनर ले आया बॉडी के अंदर. Devil has brought dishonor in the body of Christ. मैंने आपको बताया था अपने जीवन से, मैं जिस कलीसिया में मेरा जन्म हुआ, मैं जब वहां से बाहर आ गया, कुछ लोगों ने, मेरे जो पास्टर हैं उनको कुछ चीज बोली मेरे विरोध में जो सही नहीं थी, और एक डिस्टेंस आ गई थी. I told you the church that I was born again into, when I came out of that church, some people went to the pastor and said lies about me, and there was a distance that was created between me and my pastor. और मैं जब भी उनके बारे में सोचता था, मैं बार बार, पास्टर सामर्थ यहाँ पर गवाह हैं, मेरी वाइफ है, मैं हमेशा एक चीज, बार बार जब उनके बारे में सोचता, मैं हमेशा एक चीज सोचता कि मैं उनके पाँव धो रहा हूँ. And every time I would think about him, I would imagine just one thing, that I'm washing his feet. क्या बाइबल ये कहती है अपने माता पिता का आदर कर जब वो सिद्ध हो? Does the Bible say honor your mother and father if they are perfect or when they are perfect? No. नहीं. Why do we honor our mother and father? हम क्यों अपने माता पिता का आदर करते हैं? Because they are our mother and father. क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं. Why do we honor our spiritual leaders? क्यों अपने आत्मिक अगुओं का आदर करते हैं? Because they are our spiritual leaders. क्योंकि वो हमारे आत्मिक अगुआ God हैं. has ordained them to bless the church. परमेश्वर ने उनको रखा है कि वो कलीसिया को आशीष दें.
they in themselves cannot bless you. Please understand. वो अपने आप से आपको आशीष नहीं दे सकते. अगर आपके पास कोई एक प्याले में चाय लेकर आए और आप बोले मुझे प्याला पसंद नहीं है, तो चाय भी वापस जाएगी उस प्याले के साथ. If somebody brings to you a cup of tea and you say I don't like this cup, the tea goes back with the cup. Because they are just the vessel that holds what God pours in that church. क्योंकि वो केवल एक बर्तन है उस चीज का जो परमेश्वर ने उस कलीसिया में उंडेला है. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? I've seen this myself. मैंने खुद देखा ये. So today I have no problem submitting myself whenever I see an elder in the spirit, whenever I see a man of God who has walked before me, I quickly submit because I have learned this, that the oil flows from top to bottom. So I quickly submit, I come under them because I know what God has poured into their life. If I position myself in the right way, it is going to fall on me. आज जब मैं किसी आत्मिक ऐसे परमेश्वर के जन को देखता हूं जो मुझसे पहले से परमेश्वर के साथ चलते हुए आए हैं और मैं देखता हूं आत्मा में उनका स्तर मुझसे ऊंचा है, तो मैं जल्दी से अपने आप को उस जगह पर, उस पोजीशन में ले आता हूं कि मैं उनसे वो अनुग्रह पाऊं जो परमेश्वर उनके ऊपर उंडेला है, क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है. Amen. When a father and a mother and जब वो spiritual हो जाता है, it becomes double. The Bible says it. It's double. जब एक बाप और एक माँ के लिए ऐसा है, तो आत्मिक जब बात होती है तो बाइबल के लिए दुगना है. So when a spiritual father or a spiritual leader blesses somebody from the core of their heart, you have no idea what will unlock in your life. जब एक आत्मिक पिता या एक आत्मिक अगुआ अपने दिल की गहराई से किसी को ब्लेस करता है ना, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है क्या खुल जाएगा आपकी जिंदगी में. I don't care about what people think. I am living in that, the reality of this. मुझे परवाह नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं, मैं जी रहा हूं इस हकीकत में. Okay? A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जिसको अनुभव से ज्ञान है वो उसकी नहीं मानेगा जिसको सिर्फ किताबी ज्ञान है. हाँ, सो आज इस बात को सुनो. अगर मैं एक ऐसे पास्टर को मिलूंगा, हो सकता है उनके चर्च में 40 लोग आते हैं. If I meet a pastor, maybe only 40 people come to his church. It is not about the number of people. कलीसिया में But कितने in लोग the हैं वो नहीं. spirit, I know he is an elder. पर आत्मा में अगर मैं पहचानता I'm हूँ not कि ये अगुआ talking हैं, about in the body. मैं मसीह की देह में बात नहीं, मैं शरीर में बात नहीं कर रहा हूँ. Maybe there are many people who have white hair, but they are still babes in the spirit. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाल तो पक गए पर आत्मा में अभी भी बच्चे हैं. I'm talking about in the spirit. If I realize that this man is an elder in the spirit, मैं अगर ये even though he पहचान doesn't have a big ministry, I quickly submit. And I'm not saying it's not a physical posture. I'm not saying I'll come and sit under them. I'm talking about it's a heart posture. You align your heart under them. So I know what the Lord has done to this man, the oil is going to flow to me. मैं अगर ये पहचान लूं कि आत्मिक डील डॉल में ये मुझसे ऊपर हैं, तो मैं अपने आप को नम्र करके ऐसे कर लेता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उनके पाँव में बैठ के सीख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को नम्र करता हूँ उस अनुग्रह को लेने के लिए जो उनके ऊपर प्रभु ने डाला है. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. मैं आपको बता रहा हूं, आप जब इस बात का समझ जाओगे, इस बात को, जिस बिल्डिंग में मैंने घर लिया, When you will understand this, the building that I bought a house in, okay, और मेरा एक डिजायर था and I had a desire कि पास्टर सामर्थ मेरे से नीचे रहेंगे. that Pastor Samarth that I would live under his house. Okay. He doesn't know, but I used to go there often. And I used to say, ये फ्लैट नहीं बिकेगा यीशु के नाम में. इस फ्लैट में पास्टर सामर्थ वेलकम. उनको नहीं पता पर मैं उस घर में जाके कहता था, this flat will not be sold in this house, Pastor Samarth will live. Okay. उस कितने फ्लैट्स हैं उस पूरे उसमें? In that building? हाँ, पूरा 150 फ्लैट्स हैं. कितने? 150. सारे बिक गए उसको छोड़ के. All the 150 flats in that compound were sold except for that one. जब एक पिता के मुंह से ब्लेसिंग निकलती है ना, वो केवल शब्द नहीं है, it is a spiritual force. When
a blessing comes out of a father's mouth, it is not just words, वो एक आत्मिक बल है. आमेन. उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक दोस्त हैं, After that, a friend of ours, वो अपने किसी संबंधी के लिए वो फ्लैट देखने गए. he went to see that flat for one of his relatives. ओके. जितने का मैंने लिया है, मुझे लगा मैंने बहुत सस्ता लिया था, I thought I had bought very cheaply. मगर बिल्डर ने उनको 10 लाख और सस्ता दे दिया. The builder offered him 10 lakh lesser for that flat. मगर वो फ्लैट तब भी नहीं बिका. But that flat was still not sold. और आज पास्टर सामर्थ उस फ्लैट, मेरे फ्लैट के नीचे रहते हैं. Today I live under Apostle G's flat. आप जानते हैं, एक दिन मैं बस ऐसे चल रहा था और अचानक एक थॉट मेरे अंदर आया. One day I was just walking and this thought hit me. और वो ये था कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी ओर है. That my heavenly Father is on my side. मेरे शारीरिक पिता आज जीवित हैं, और मैंने कहा मेरे शारीरिक पिता मेरी ओर हैं, And I said my physical father is also on my और side. मेरे आत्मिक पिता मेरी ओर हैं. And my spiritual father is on my मुझे कोई नहीं रोक सकता अपनी डेस्टिनी को पूरी करने से. side. Nothing can stop me from fulfilling my destiny. मैं सोच भी नहीं रहा, it just came in my heart. I wasn't even thinking it. वो सिर्फ मेरे दिल में और आया. अगर आप इस चीज को सोचो, ये आपके सामने, ये एविडेंट है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या. And if you think about this, this is so evident. You don't even need a proof to see this. ओके, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं. अभी आपको दो छोर दिखेंगे कलीसियाओं के. You will see two extreme ends of churches. आप देखोगे वेस्टर्न साइड की चर्चेस, You will see the Western churches जहां फ्लैट कल्चर है. where there's a flat culture, कई तो वहां पास्टर को नाम लेकर बुलाते हैं, and many of them call their pastor by his name बिकॉज दैट्स देयर कल्चर. क्योंकि वो उनका कल्चर है. और दूसरी साइड आप देखोगे, And on the opposite end, आप देखोगे अफ्रीकन चर्चेस, you will see African churches मेनी चर्चेस इन इंडिया, पंजाब में जहां आप देख रहे हो. और इंडिया के भी कई churches आप पंजाब देखो, आपके सामने है. ओके, में. It is clear before you. आप देखो, You see it. जहां उनके अगुओं का कोई आदर नहीं है, Where there is no honor for their leader, वो वही गाने गा रहे हैं They are जो दूसरी singing- चर्चेस में गा रहे हैं. they are singing the same song which other churches are singing. वो वही बाइबल से प्रचार करते हैं संडे को, They are preaching from the same Bible on Sunday. पवित्र आत्मा नहीं मूव करता. But the Holy Spirit is not moving. देयर आर नो मिरेकल्स. कोई चमत्कार नहीं होते. और चर्चेस श्रिंक कर रही हैं. And the churches are shrinking. अभी लंदन में कितनी सारी चर्चेस हैं जो बिक के अब वहां बार खुल रहा है चर्च के अंदर. Now many churches in London have been sold and they're opening bars in those buildings. If Jesus is the same in every church, why isn't he moving in those churches? अगर यीशु सब कलीसियाओं में एक सा है तो उन कलीसियाओं में क्यों कुछ नहीं कर रहा है? और दूसरा छोड़ देखो, And look at the father and the other end, जहां बहुत आदर है अपने अगुओं का, where there is too much honor for their leaders. वहां आज नाइजीरिया में 10 लाख लोगों की चर्चेस है. 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख. पंजाब में देखो जो चल रहा है, पवित्र आत्मा वहीं कार्य करता है जहां आदर है. In Nigeria, there are churches with 10 lakh people, 2 lakh, 4 lakh. Same thing is happening in Punjab. You see, Holy Spirit will move where there is honor for the leaders. Amen. बिकॉज जिसको खुदा ने नियुक्त किया है उस मंडली को ब्लेस करने के लिए, अगर आप उसी को रिजेक्ट कर दो तो कैसे वो आपको खाना खिला सकता है, आत्मिक खाना. Because whom God has appointed to bless you and to feed you, if you reject that person, how will God be able to feed you? Amen. यही बात यीशु मसीह ने कहा, जेरूसलेम जेरूसलेम, मैंने खुदा के दासों को तेरे पास भेजा, अपने दासों को तेरे पास भेजा, मगर तूने सबको ठुकरा दिया. This is what Jesus told Jerusalem. I have sent my prophets before me. I have sent my people before you, before me, but you rejected them all. हमेशा याद रखो, Always remember. जब आप इस बात को सीख गए कि कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो, That when you learn how you can come under this blessing. आज भी कई बार जब मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं अपने जो मेरे पिता हैं मैं उनके पास जाता हूं,
मैं उनको कहता हूँ मेरे को ब्लेसिंग के साथ रिलीज करके भेजो मिनिस्ट्री में. Even today, when I go for a meeting, I go to my father and say, bless me and release me for this meeting. The Heavenly Father's heart gets pleased when we learn to take our rightful place. स्वर्गीय पिता का दिल आनंद से भर जाता है जब हम सही स्थान देना सीख लें. Hallelujah. Amen. थोड़ा सीरियस हो गया आज मुझे लग रहा है. Amen. Let me go to the scripture again. It's very close to my heart. मैं इस वचन में जाता हूँ. आप जानते हैं मैं एक वो व्यक्ति था जो बिल्कुल आदर नहीं जानता था अपने माता पिता का. You know, I was such a person who did not know how to honor my mother and father at और all. फिर मैं आपको कह रहा हूँ आदर बाहर से नहीं दिखता. आप बाहर से कर सकते हो, ये सब कर सकते हो. खुदा देखता है आपके दिल में क्या विचार उठते बैठते हैं आपने अपने माता पिता. And I'm telling you, you can do all the external things rightly, but God is looking at the thoughts that rise in your heart. पौलुस कलीसिया को ये सिखा रहा है. Paul is teaching the churches. अगर अपने माता पिता का आदर करना सीख गए तो तुम भले चंगे रहोगे और लंबा जियोगे इस पृथ्वी पे. That if you learn to honor your mother and father, you will live a well life and have a long life on the earth. मैं एक व्यक्ति से मिला, वो सिखा रहे थे कि कोई हमें बता रहा है कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, अब हमें अपने माँ बाप का आदर नहीं करना है, हम मसीह में आ गए. मैंने कहा बिल्कुल फॉल्स शिक्षा है, ये खुदा के तरफ से नहीं है. I met a man who was telling me that we have now come to the Lord and someone is teaching us that we should leave our parents, we should not honor them, now we are in the Lord. I said this is a false teaching. No. अगर हम में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, अगर आत्मिक बुद्धि है, तो हम इस बात को समझ जाएंगे. then we'll understand this. एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग का वो लोग कभी नहीं देख सकते जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते. Those who do not honor their mother and father will never see an aspect of blessing. Even though the blessing is for them. हालांकि आशीष उन्हीं के लिए है. But there is a portion of blessing that God had kept which gets unlocked when you honor your mother and father. लेकिन परमेश्वर ने आशीष का एक पहलू, एक अंश रखा हुआ है जो तभी खुलता है उसका ताला जब आप अपने माँ बाप का आदर करते हो. Amen. और केवल लंबा नहीं जियोगे. Not just that you will live a long It life. will be well with you. आपके साथ भला चंगा होगा. मैं आपको अपना एक आत्मिक अनुभव बताता हूं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सिखाया. I'll tell you one of my spiritual encounters through which Lord Jesus taught me this. मैं जब अपने यंग डेज में मैं दोस्तों के साथ घूमता रहता था हर समय. In my young days, I used to roam around with my friends. And I never really understood this. और मैंने कभी ये समझा नहीं था. और जब मैंने नया जन्म पा लिया तो After I got मैं saved, यीशु मसीह का आदर तो करने लगा. देखिए कितने आज लोग हैं, वो पता क्या बोलते हैं, मैं यीशु का आदर करता हूँ केवल. I began to honor the Lord Jesus, and many believers today say, I honor Jesus. मैं केवल खुदा के अधीन हूँ. I only submit to God. मूर्ख करते हैं ऐसी बातें. They are fools who talk like that. क्योंकि अगर मैं खुदा के अधीन हूँ, Because if I submit to God, then I'll submit to His word. तो फिर मैं उसके वचन के भी अधीन होऊंगा. और उसके वचन में लिखा है अपने माता पिता का आदर कर. And His word commands me to honor my mother and father. His word tells me to honor my spiritual leaders. उसका वचन मुझे कहता है अपने आत्मिक अगुओं का आदर करने के लिए. So एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, करीबन 40-45 मिनट हो गए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था. One day as I was praying about 40-45 minutes in the spirit, और अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आए. suddenly I saw the Lord Jesus walk into my room. और मैं अपने नीज में था और मैंने उनके पाँव देखे. I was on my knees and I saw His feet. और मैं फूट के रोने लगा. And I started to cry bitterly. वो मेरे आगे खड़े हो गए. He came and stood before me. और मैं उनको कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ. And I began to tell him I love you and I honor you. और मैंने देखा मेरे आंसू उनके पाँव में गिर रहे थे. And I saw my tears were falling on his feet. और फिर मैंने देखा कि वो
सीन चेंज हो गया और देहरादून में मेरे मम्मी पापा रहते रहे उस समय, और वो देहरादून में मुझे ले गए और मैंने देखा मेरे माता पिता बिस्तर के ऊपर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा अब इनके पाँव दो. And then I saw the scene changed, and he took me to Dehradun where my mom and dad lived at the time, and they were seated on the bed, and he came and stood next to them, and he said, now wash their feet. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ This is हर not एक correct. ब्लेसिंग आप जानते हैं किसके लिए? जो हम्बल है, नम्र है, अपने आप को झुकाना जानते हैं. You know, every blessing is for those who are humble, who know how to stoop down to receive. जिनकी गर्दन अकड़ी रहती है ना ऐसे, Those who have a stiff neck, उनके ऊपर कुछ नहीं आता. nothing comes over them. बाइबल कहती है नम्र पे तो वो और भी अनुग्रह करता है. The Bible says he pours out more grace, greater grace on those who are humble. Amen. Put Psalm 133. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ भजन 133. Okay. तेल ना कभी पाँव में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता. The oil that is poured on your feet will never come up to your head. तेल कमर में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता. If it is poured on your waist, it will not come to your head. तेल हमेशा सर पे उंडेला जाता है. It is always poured on the head. सर से दाढ़ी में आता है, Comes to your beard. दाढ़ी से नीचे बहता है. From the beard it comes down. तो अगर तेल जब बह रहा है और मैं साइड में खड़ा हूं ना तो मेरे ऊपर नहीं बहेगा. So when the oil is flowing and I'm standing on the side, it will not come to me. मैं आपको गवाही के बाद गवाही बता सकता हूं. वे सारे लोग बड़े बड़े, आपने यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आपके सामने ये चमत्कार जो हो रहे हैं. I can tell you testimonies after testimonies. You're seeing so many miracles happen right in front of you. जब हम उन लोगों से मिलते हैं ना, ये वो लोग हैं जो नम्र हैं. When we meet these people, they are those who are humble. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. ओके, वर्स 2. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके छोर तक पहुंच गया. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down to the edge of his garments. Amen. इस वर्स में बाइबल कहती है for here God has commanded blessing. बाइबल कहती है यहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया कि यहाँ पर आशीष होनी चाहिए. तो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं और परमेश्वर चाहता है अगर मैं कुछ उंडेलूं जो इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर आए तो वो हमेशा सर से उंडेला जाएगा कि उंडेलता हुआ छोर तक वो पहुंच जाए, अंत के छोर तक वो तेल बहता हुआ पहुंच जाए. So if I see according to this that if God wants to pour out something over this church, then he will pour it on the head and it will come down from the head and go to the ends of the garment to everyone here. Amen. इसीलिए मैं आपको कहता हूं अंत में जब हम घोषणा करते हैं इट्स नॉट वेल विशेस, व्हेन इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ इट कैरीज स्पिरिचुअल सब्सटेंस. When we make declaration, वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जब वो भीतरी वो गहराई से आती हैं तो वो उसमें बहुत ठोस सबूत है. 11 साल में In 11 years, 2 लोगों का फ्यूनरल हुआ है जो और वो भी इस चर्च के मेंबर नहीं थे. only 2 people have been buried in, and they were not members of the church. क्योंकि हर संडे आप हर दिन आपके ऊपर प्रार्थना की जाती है कि समय से पहले कोई इस कलीसिया का नहीं जाएगा अपनी कॉल को पूरा करे बिना. Because we pray over you every day, not even one person of this church will leave before their time, before fulfilling their call. Amen.